This is video 5 out of 28. This video is about loops in Python. We will study for loop, while loop, how to use break statement and continue statement in Python. The learning outcome of this session is understand why loops are used. Second, use for loop for fixed repetition. Use while loop for condition based repetition, and apply break and continue statement correctly in Python. And at the last, I will show you some PBS style program related to the loop. What is a loop? Loop की definition क्या होती है? A loop repeats a block of code multiple times. कि कुछ a number of statements that is repeated again and again until the given condition is true, we can say that is a loop. Printing numbers, if you want to print the numbers from 1 to 100, mean you can use a loop. Calculating sum, you want to calculate the sum, mean first 100 numbers. You want to sum of first 100 numbers. You want to sum of first 10 even numbers. You want to calculate the factorial of a number. You want to solve different kind of series. Generating tables, you want to print a table of number 5, number 7, so on, you can do it. Repeating input until a condition is met. You can get a number, you can continue the loop until you will enter 0, until you will enter -1. This is repeating input until a given condition is true. Example, here I have written a loop for I in range 1 to 6, print I. Okay, what I have written, I is a loop variable that is used to control the loop, and it will start from 1. It will start from 1 and will move till 5. Mean 1, 2, 3, 4 and 5. Range function mean that this number is not included, 1 to 5, and always what they will do, they will print I. I means 1, 2, 3, 4, 5. This type of input, this type of output it will print. Okay. Remember, you must enter the tab here, mean indentation. Moving to the next slide. Note range is 1 to 6 means print 1 to 5. I equal to 1, it will start from 1, while I is less than equal to 5. Less than equal to 5 means it will move till 5. Less than or equal to 5. Due to equal, it will move till 5. Print I, and I equal to I plus 1. Okay, you can write in this way, or you can write I. First, you will write always operator, plus, then equal sign. Okay, it will display the same output 1, 2, 3, 4 and 5. Important, update the variable to avoid an infinite loop. Okay, अगर आप इसमें ये इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप कभी भी नहीं रुकेगा, इनफाइनेट को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. ब्रेक statement is used to stop the loop immediately, and continuous statement skip the current iteration and goes to the next. Okay, use break for stop condition and continue for skip condition. Okay, means कि आपने अगर continue यहाँ पे लिखा हुआ, suppose आपने continue लिख दिया और इसके बाद जितनी भी statements लिखी हुई है वो सारी की सारी skip हो जाएंगे. Common mistakes while using loop and continue and break statements. Number 1, forgetting to update the variable in while loop. आप क्या करते हो, आप while loop यूज करते वक्त आप इसको अपडेट नहीं करते. जब अपडेट नहीं करेंगे तो loop is going to be in infinity approach, तो infinity की तरफ loop चला जाएगा. Number 2, wrong indentation inside the loop. लूप के अंदर भी आपने इंडेंटेशन अप्लाई करनी है, राइट इंडेंटेशन. ऑफ बाय 1 इन रेंज 1 to 10 एंड एट 9 नॉट 10. आपको पता है कि जब आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, दिस इज एक्सक्लूडेड नंबर होता है. ठीक है, तो अगर आपने 1 से लेकर 10 तक लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि 10 तक जाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा. मीन्स कि आपको 11 लिखना पड़ेगा. यूजिंग ब्रेक टू अर्ली, लूप स्टॉप बिफोर कंप्लीटिंग टास्क. यूजिंग कंटिन्यू एंड देन वंडरिंग व्हाई आउटपुट इज मिसिंग. ओके, यानी कि आप
अर्ली कंटिन्यू लिख देंगे तो वहां से स्किप करता जाएगा, फिर आप कहेंगे इसमें आउटपुट नजर नहीं आ रही। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिंट 1 to 10 फॉर लूप। आपने क्या करना, 1 से लेकर 10 तक लूप लिखना है। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखेंगे, 1 to 11 आप मूव करेंगे। 1 से स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग नंबर इंक्लूड होगा, और 10 तक जाएंगे जो कि 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 सो ऑन 10 तक ही आउटपुट शो करेगा, 1 to 10 आउटपुट शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंट 10 to 1। आपने 10 से स्टार्ट करना है, 1 की तरफ मूव करना है व्हाइल लूप यूज करते हुए। तो आपने क्या लिखा, i इक्वल टू 10 से स्टार्ट किया, व्हाइल i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन लगाई। प्रिंट i आपने लूप लगा दिया, और यहां पे आपने क्या कर दिया, i माइनस माइनस किया। याद रखिए ये व्हाइल लूप की बॉडी है, तो इन दोनों में आपने, दोनों स्टेटमेंट में आपने इंडेंटेशन लास्ट में यूज करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोग्राम नंबर 3, सम ऑफ 1 to n। 1 से लेके n तक जितने भी नंबर हैं उनका आपने सम करना है। तो उसके लिए हम मूव करते हैं n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर n। आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर इनपुट करवाया, और नंबर किस में स्टोर कर दिया, वो n में। सपोज आपने n में एंटर कर दिया है जी 8। टोटल इक्वल टू 0। टोटल में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ, 0। तो लूप कहां से मूव करेगा, i से स्टार्ट करेगा, मीन 1 से स्टार्ट करेगा, उस नंबर के एंड तक मूव करेगा, और ईच टाइम क्या करता जाएगा, टोटल में i इंक्रीमेंट करता जाएगा। मींस कि n की वैल्यू मेरे पास है सपोज 8, और i कहां से स्टार्ट होगा, i स्टार्ट होगा पहले 1 के लिए कहां चलेगा i, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, और 8 के लिए। जब i 1 के लिए चलेगा तो टोटल में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ, टोटल में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ, बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा हुआ। तो यहां पे क्या करेगा, यानी कि i की वैल्यू जो 0 टोटल में पहले पड़ा हुआ है, और 1 i की वैल्यू, तो स्टोर क्या हो जाएगा, i में टोटल में 1 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो i की वैल्यू 2 टोटल में पहले क्या पड़ा हुआ, टोटल में पड़ा हुआ है 1, 2 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 3। i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, i की वैल्यू 3, टोटल में प्रीवियस वैल्यू 3 पड़ी हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब i में क्या पड़ा हुआ 4 + 6, टोटल में 6 पड़ा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए i में 5 पड़ा हुआ, टोटल में क्या पड़ा हुआ, टोटल में लास्ट टाइम 10 पड़ा हुआ, 10 + 5 15 आ जाएगा। ठीक है, 6 में मूव कर जाए, तो i की वैल्यू 6 है, जबकि टोटल में 15 पड़ा हुआ, तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद i में 7 आ जाएगा, टोटल में 21 पड़ा हुआ, 21 + 7 = 28 आ जाएगा। अब 28 i में 8 पड़ा हुआ है, जबकि टोटल में क्या पड़ा हुआ, टोटल में 28, i में 8 था, टोटल में 28 था, 28 + 8 36। तो ये इसका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर इसका 36 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू क्या थी 8, 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 72, डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 36। मैंने क्या फार्मूला यूज किया, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, तो 36 आंसर क्या आएगा 36 आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। टेबल ऑफ अ नंबर 1 to 10। आपने क्या किया, एंटर अ नंबर, आपने यूजर से पूछा नंबर एंटर करो, और नंबर सपोज आपने एंटर कर दिया 5। ये क्या करेगा 5 i 1 से स्टार्ट करेगा, और कहां तक मूव करेगा 10 तक मूव करेगा, और ईच टाइम क्या प्रिंट करेगा xi = n टाइम्स i। n में क्या पड़ा हुआ 5, इसकी जगह क्या लिखेगा 5, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज शो कर देगा। i की जगह क्या शो करेगा, नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 आ जाएगा, इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा, 5 × 1 5, फिर 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 10, और ये मूव करेगा 10 तक, और 10 × 5 = 50, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर n। जी, अब ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंटर द नंबर, n में स्टोर किया, n में आपने स्टोर कर दिया सपोज 6 स्टोर किया, फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्ट में बाय डिफॉल्ट 1 पड़ा हुआ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग 1। व्हेन यू आर एडिंग अ नंबर, देन यू विल add by default 0, because by adding 0 in any value that will not be effect. That's why helping or supporting or initiating variable में हम 1 करेंगे in case of multiplication,
और 0 पुट करेंगे इन केस ऑफ प्लस। तो फैक्टोरियल में क्या लिखा हुआ, आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेगा, n+1 नंबर तक जाएगा, n में मैंने 6 किया तो ये मूव करेगा 1 से लेके 6 तक। फैक्टोरियल में ये कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज ये i की वैल्यू मूव करेगा, ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, 1 आएगी 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। और फैक्ट में क्या लिखा हुआ, फैक्ट में लिखा हुआ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट टाइम आई लिखा हुआ। तो आई की वैल्यू क्या थी 1, बाय डिफॉल्ट फैक्टोरियल में क्या पड़ा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स फैक्टोरियल में लास्ट टाइम क्या पड़ा 1, 2 1s आर 2 आ गया। नेक्स्ट आई में वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 टाइम्स फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू 2 पड़ी हुई है तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 के लिए आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फैक्टोरियल में लास्ट 6 पड़ा हुआ 24 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आई की वैल्यू 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टाइम फैक्टोरियल में 24 पड़ा हुआ है, 24 5s आर 5 4s are 20 and 5 2s are 10 plus 2 that is 12 means 120। नेक्स्ट हम करेंगे 120 जो कि फैक्टोरियल में पड़ा हुआ है और आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 6 जो कि मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 12 6 are 72 72 0। तो फैक्टोरियल में क्या आंसर आ जाएगा 720 और यहाँ पे शो करेगा फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट मीन 720। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, काउंट डिजिट्स इन अ नंबर व्हाइल लूप। ओके, आपने डिजिट्स काउंट करने हैं कि व्हाइल लूप में कितने, सॉरी व्हाइल लूप को यूज करते हुए कि नंबर कितने डिजिट्स में है। एन आपने एंटर नंबर, एन आपने स्टोर किया, सपोज एन में आपने एंटर कर दिया एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंटर कर दिया। काउंट इक्वल टू 0, काउंट में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, काउंट में हमने रख दिया यहाँ पे 0। इफ n इक्वल टू 0, n में तो 1 2 3 4 पड़ा हुआ, काउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। काउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एल्स यहाँ पे देखें, एल्स में क्या लिखा, इफ, तो ये नहीं चलेगा इस केस में, अगर 1 2 3 के 4 के केस में एल्स में आ जाएगा। एल्स में लिखा व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर 0 ना हो जाए आपने क्या करना है, n को लिखा हुआ n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपने क्वोशंट लेना है। मींस मैं क्या करता हूं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो आंसर मेरे पास आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0। तो मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि आपने डबल स्लैश लगा हुआ तो यहां पे पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे। तो अब n के पास क्या आ जाएगा, n के पास अब आ जाएगा इसमें न्यू वैल्यू, n के पास क्या आ जाएगी, इस वैल्यू की जगह मैं लिख देता हूं न्यू वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट चल गई। नेक्स्ट लिखा हुआ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में मैं 1 का इंक्रीमेंट कर देता हूं, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी चल गई। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, लूप में दोबारा फिर मूव करेंगे, क्योंकि इसने मूव करना है जब तक n 0 ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, दोबारा मैं देखता हूं n नॉट इक्वल टू 0 नहीं, तो फिर n को डिवाइड करे 10 के साथ। तो अब न्यू वैल्यू n में पड़ी हुई है 123, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 12 120, रिमाइंडर इज 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। n में अब न्यू आंसर वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू इसमें आ जाएगी 12, ठीक है। ये स्टेटमेंट चल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, तो काउंट में मैं एक का इंक्रीमेंट कर देता हूं, ठीक है। फिर दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यहां पे लूप मूव करेगा और फिर चेक करेगा n इज नॉट इक्वल टू 0, n में तो 12 पड़ा हुआ, अभी 0 नहीं हुआ, तो फिर दोबारा यहां पे चेक करे, डिवाइड करेगा। अब क्या डिवाइड करेगा, 12 डिवाइडेड बाय 10 1 आएगा, यहां पे 10 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब n में न्यू वैल्यू क्या बच जाएगी 1 आ जाएगी। n थर्ड टाइम चला, n में 1 आ गया और काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर देता हूं, ठीक हो गया। अब दोबारा फिर वो मूव करेगा ऊपर, जब ऊपर मूव करेगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 0, n में अभी 2 पड़ा हुआ है, n में क्या पड़ा हुआ, n में अभी 1 पड़ा हुआ, ये 1 पड़ा हुआ, तो क्या करेगा 1 को डिवाइड करेगा
10 के साथ, 10 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब n में क्या आ जाएगा, अब n में आ जाएगा 0, 0 आ गया, और n में 0 आ गया, और काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करें, काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा फिर मूव करेगा ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, नो 0 इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को स्किप करेगा और प्रिंट क्या करेगा, डिजिट्स इक्वल टू कितने, काउंट में क्या पड़ा हुआ 1 2 3 4, तो काउंट में क्या लिख देगा 4। तो आपने काउंट कर लिया कि इसमें कितने डिजिट्स है 4। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो लंबी होती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, रिवर्स अ नंबर, नंबर को रिवर्स करना है आपने। n इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, आपने n में स्टोर कर दिया सपोज 1 2 3 4, रिवर्स में क्या पड़ा हुआ, रिवर्स में 0 पड़ा हुआ, बाय डिफॉल्ट रिवर्स में 0 रखा। वाइल n नॉट इक्वल टू 0, n में अभी 1 2 3 4 पड़ा हुआ, 0 नहीं है, तो डिजिट में क्या करेगा, डिजिट को वो डिवाइड करेगा किसके साथ, 10 के साथ, यानी कि n को 1 2 3 4 को मैं 10 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर में मैंने देखना रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, 1 2 3 0, रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, तो डिजिट में क्या आ गया, 4 आ गया, इस जगह पे डिजिट में क्या आ जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, 4, तो वो रिवर्स में क्या एंटर कर देगा, रिवर्स में एंटर करेगा, बाय डिफॉल्ट रिवर्स में क्या पड़ा हुआ 0 टाइम्स 10 प्लस 4, तो रिवर्स में आ जाएगा 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, रिवर्स में अभी क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट n को डिवाइड करिए 10 के साथ, n को डिवाइड करिए 10 के साथ, जब मैं n को डिवाइड, ये मैंने 10 के साथ डिवाइड किया तो इस केस में क्या आ जाएगा, मेरे पास क्वोशिएंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 123। अब n में क्या आ गया, n में पहले क्या था 1 2 3 4 था, तो इससे क्या आ गया मेरे पास, अब आ गया 1 2 3 हो गया, तो फिर यहां से फिर मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा, तो n ग्रेटर देन n नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या करेगा, डिजिट को डिजिट के पास वैल्यू लेके आएगा, न्यू वैल्यू, कैसे, n परसेंटेज 10, यानी n में क्या पड़ा हुआ 123 डिवाइडेड बाय 10, यहां पे आएगा 12 120, तो बाकी क्या बचेगा 3, तो डिजिट के पास अब न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू डिजिट के पास आ जाएगी 3। तो अब नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट रिवर्स, मीन रिवर्स में अब दोबारा स्टेटमेंट में लिखता हूं। ठीक है, तो रिवर्स में लिखा हुआ है, रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स में लास्ट टाइम क्या पड़ा था 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट में क्या अब वैल्यू आई 3, तो रिवर्स के पास अब न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 43, मीन 43 आ जाएगा 43। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, n को डिवाइड करे 10 के साथ, जब मैंने 10 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास होल नंबर क्या बना 12, तो अब n के पास जो न्यू वैल्यू बनेगी वो आएगी 12। फिर लूप ऊपर की तरफ मूव करेगा और चेक करेगा कि 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यस, फिर वो क्या करेगा, इसका रिमाइंडर लेगा, मींस 12 डिवाइडेड बाय 10 देन 1 10, रिमाइंडर बचा 2, तो अब डिजिट में न्यू वैल्यू क्या आएगी, डिजिट में न्यू वैल्यू आएगी मेरे पास 2। ठीक है, तो अब रिवर्स में कैसे मूव करेगा, रिवर्स में लिखा हुआ है, मींस लास्ट टाइम रिवर्स में क्या पड़ा हुआ, रिवर्स में पड़ा हुआ लास्ट टाइम 43 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट में अब क्या बना, डिजिट में अब मेरे पास है 2, मींस 430 प्लस 2 मीन 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर n को डिवाइड बाय 10 करेगा, जब n को डिवाइडेड बाय 10 करेगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, अभी देखिए n में क्या पड़ा हुआ, n में 12 पड़ा हुआ था ना, तो 12 को 10 पे डिवाइड करेगा तो क्वोशिएंट मेरे पास आ जाएगा 1, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 1 नॉट इक्वल टू 0, यस, तो फिर क्या करेगा, फिर 1 को डिवाइड करे किसके साथ, 10 के साथ, तो जब डिवाइजर इससे बड़ा हो तो रिमाइंडर वही नंबर आ जाता होता है 1। अब इसमें क्या आएगा 1, डिजिट में क्या आ गया, डिजिट में आ गया 1। याद रखें कि अगर डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा हो तो रिमाइंडर
जो नंबर से डिवाइड कर रहे हो वही आ जाता होता है, ये आपने थंब रूल के तौर पर यूज कर लेना है। 1 आ गया। तो अब देखिए रिवर्स में क्या पड़ा हुआ था, रिवर्स में पहले पड़ा हुआ था, इधर मैं लिख लेता हूं 432 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट में क्या बना हुआ 1, तो ये बन जाएगा 4320 प्लस 1 4321 आ गया। ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मीन 1 को डिवाइड करूंगा 10 के साथ तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो n में क्या आ जाएगी वैल्यू, n में आ जाएगी 1 आया था और यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ गया। जब 0 ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लास्ट में रिवर्स इक्वल टू क्या लिखेगा, रिवर्स। रिवर्स में क्या पड़ा हुआ 4321 और आपने देख लिया कि मैंने नंबर को कैसे रिवर्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट समरी और चेकलिस्ट देखते हैं। समरी में हमने स्टडी किया है फॉर लूप। फॉर लूप इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड repetition, while loop is used for condition based repetition, break is used to stop the loop, and continue is used to skip the iteration. Checklist: before final run you must check indentation correctly and then loop condition correct, counter update inside while loop, and output message clear. प्रोग्राम नंबर 1 में हमने क्या करना है, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करना है। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने के लिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा लास्ट वाले नंबर में, यानी कि अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मुझे 11 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 11 लिखा। प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। मैं इसको रन करके देखता हूं तो इसको 1 से लेके 10 तक नंबर शो कर देने चाहिए और इसने कर दिया। प्रोग्राम नंबर 2, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। हमने रिवर्स लिखनी है, 10 से हमने स्टार्ट करना है और कंडीशन हमने यहाँ पे यूज करनी है व्हाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें मेन पॉइंट है कि आपने कंडीशन सही तरीके से लगानी है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना, आई लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिखना। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना है और सेकंड पॉइंट आपने आई में एक का डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीज करेंगे तो आप 10 से 1 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी कि आप उसमें डिक्रीमेंट ना करें। ठीक है, मैं रन करता हूं, रन करके आउटपुट देखते हैं तो इट शुड डिस्प्ले फ्रॉम 10 to 1। ओके, प्रोग्राम नंबर 3 में देखते हैं सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n तक हमने क्या करना है, नंबर का सम करना है। नंबर हमने स्टोर किया n में, टोटल में बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था सम करते वक्त आपने 0 करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त आपने 1 करना है। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे, n+1 तक जाएंगे। क्यों, यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखना, अगर आपने n लिख दिया तो n को इंक्लूड नहीं करेगा वो उस नंबर को, तो इसलिए मुझे n+1 लिखना पड़ा। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई लिखा और सम इक्वल टू टोटल कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसमें एंटर करता हूं 8 तो आंसर इसको 36 शो करना चाहिए, जो कि इसने कर दिया। इस प्रोग्राम में प्रिंट टेबल ऑफ नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने टेबल शो करना है। किस नंबर का जो हम नंबर एंटर करेंगे, आई हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर 11 तक और यहाँ पे नम लिखा, फिर आई लिखा, फिर नम को टाइम्स 1 के आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 5 का टेबल लिखना चाहता हूं, मैंने 5 लिखा तो इसने 1 से लेके 10 तक मुझे पूरे का पूरा वो शो करवा दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोग्राम नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। आप जो नंबर एंटर करेंगे, आपने नंबर इनपुट ली किसमें, नंबर n में, फैक्टोरियल में आपने 1 रख दिया। ये आपने याद रखना है कि मैंने पहले भी बताया कि सम करते वक्त आपने 0 लेना है और फैक्टोरियल और मल्टीप्लीकेशन करते वक्त आपने 1 लेना है। आई स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया n+1 तक, इसको भी आपने याद रखना है कि n+1 तक लिखना है और फैक्टोरियल में आपने क्या लिखा, फैक्ट टाइम आई कर दिया और बाद में फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट लिख दिया। रन करके देखते हैं हम, तो इसमें अगर मैं लिखता हूं नंबर 6 तो 720 इसका आंसर आना चाहिए, जो इसने आंसर शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। तो 1 से लेके 30 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे शो करेगा। हमने यहाँ पे 30 की बजाय क्या लिखा, 31 लिखा, क्योंकि 30 लिखते तो 30 को इसने इंक्लूड नहीं करना था। तो i%2 मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो उसको प्रिंट करेगा। रन करके देखते हैं, 1 से लेके 2 से लेके 20 तक इसने सारे के सारे नंबर शो कर दिए और 30 को भी शो कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसके ऑड नंबर प्रिंट करवाने तो मैंने नॉट लिख दिया, या मैं लिखूंगा i%2 इक्वल टू 1 लिख दूंगा। ठीक है, या मैं 1 लिखूंगा, इक्वल करना है, फिर नॉट इक्वल टू के लिए हमने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। रन करके देखते हैं तो ये भी क्या करेगा, 1 से लेके 30 तक मुझे सब के सब इवन नंबर को शो कर देगा।
प्रोग्राम नंबर 8 में प्रिंट स्क्वायर फ्रॉम 1 to n, हमने क्या करना है 1 से लेके n तक जितने भी नंबर हो उनका सबका क्या करना होगा, स्क्वायर लिखना होगा। तो हमने इनपुट ली, वो इनपुट n में स्टोर कर दी और फिर हमने क्या कर दिया, उस नंबर को रन कर दिया। नंबर 1 i को लूप स्टार्ट किया 1 से लेके उस नंबर के +1 तक और i को मल्टीप्लाई करके i के साथ ताकि हम स्क्वायर ले सके लिख दिया, प्रिंट कर दिया। रन करते हैं हम इसको। अगर मैं इसमें नंबर एंटर करता हूँ 7 तो वो 7 तक जितने भी नंबर होंगे उनका सबका स्क्वायर लिख देगा 149 till 49 तक। इनपुट अ नंबर एंड फाइंड सम स्टॉप एट 0, इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। हमने कहा है कि अगर नंबर मैं 0 लिख दूंगा नंबर में तो वो ब्रेक कर देगा, अदरवाइज वो टोटल करता जाएगा, और अदरवाइज नहीं बल्कि हर में टोटल करता जाएगा। जो भी नंबर एंटर करता जाऊंगा उसका टोटल करता जाएगा, प्लस करता जाएगा, प्लस करता जाएगा, लेकिन जब मैं 0 लिखूंगा उस वक्त ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद लूप एंड हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाके सम इक्वल टू टोटल शो कर देगा। मैं रन करता हूं तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब मैं 0 लिख दूंगा तो वो ब्रेक कर देगा। 5 + 4 9 + 3 12, इसने सम लिख दिया। इस प्रोग्राम में मैंने कंटिन्यू की एग्जांपल दी। मैंने क्या है कि जब i %3 हो तो क्या करो, उसको स्किप कर दो कि आपने 3 नंबर्स जो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर हो उसको आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो मैंने रन किया। तो जब रन करता हूं तो ये देखते आउटपुट क्या आएगी, इसके 1 2 3 नहीं लिखा, 5 6 नहीं लिखा, 7 8 9 नहीं लिखा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 21 भी नहीं लिखा क्योंकि 21 भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें कोड क्या था, i को स्टार्ट किया 21 तक, i %3 जब हो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस वक्त आपने कंटिन्यू कर देना, नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्किप करेगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी, प्रिंट i, यानी कि वो 3 को प्रिंट करना था, वो नहीं प्रिंट करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में काउंट नंबर डिविजिबल बाय 5 1 to 50। ठीक है, तो वो काउंट करेगा कितने नंबर 5 पे डिवाइड होती है 1 से लेके 50 तक। ठीक है, तो मैंने i 1 से लेके 51 तक लूप रन किया और यहाँ पे रिमाइंडर चेक किया कि 5 से डिवाइड करो हर नंबर को, हर नंबर को चेक करो 5 से डिवाइड हो करे। अगर जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आता है तो उसको ऐड कर लो, उसको काउंट करते जाओ। और बाद में मैंने देख लिया कितने काउंट हुए। रन करते हैं तो यहाँ पे आंसर दिया इसने 10, 1 से लेके 50 तक 10 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 पे डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया, काउंट डिजिट्स इन अ नंबर। एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं वो हमने काउंट किए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो व्हाइल लूप यूज करेगा और यहाँ पे वो उसको डिवाइड करेगा और उसका होल नंबर लेगा और उसमें क्या करता जाएगा, काउंट करता जाएगा। रन करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 तो मुझे वो शो करेगा डिजिट्स आर 5। ठीक है, तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ इसका। रिवर्स नंबर, आप जो भी नंबर एंटर करेंगे उसको रिवर्स करेगा। कैसे रिवर्स करता जाएगा, वो पहले क्या करेगा, इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा 10 से और वो डिजिट्स में लेके आता जाएगा और बाद में रिवर्स को मल्टीप्लाई करता जाएगा 10 के साथ प्लस डिजिट्स उसमें ऐड करता जाएगा। और यहाँ पे n डबल डिवीजन यूज किए, डबल स्लैश यूज किया 10 के साथ, यानी कि उसका क्या देगा, मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू को इग्नोर कर देगा, जस्ट मुझे होल नंबर देगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो में, तो रन करके देखते हैं आउटपुट क्या शो करेगा। अगर मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 तो वो लिख देगा 4 3 2 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट मी इन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल।